علاقائی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے پاک پتن سے، جہاں افسوسناک حادثے میں ریسکیو آفس کے قریب زیر تعمیر مکان کا لنٹر گر ریسکیو ذرائع کے مطابق ملبے کے نیچے دبنے والے 3 مزدوروں کی تلاش کے لیے ریسکیو کے اہلکاروں کا سریے کاٹ کر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو نے 2 مزدوروں کو تشویشناک حالت میں ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ لنٹر کے نیچے دبے مزدور کے تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کی قذافی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم لاہور آمد۔ فیصل کریم کنڈی نے پاکستان سپر لیگ کے مقابلے میں پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے درمیان کرکٹ میچ دیکھا۔ پاکستان سپر لیگ کرکٹ شائقین اور ملک میں کھیلے کے حوالے سے دنیا کو امن کا پیغام ہے۔ خواہش تھی کہ میچز سپر لیگ کے میچز پشاور میں بھی منعقد ہوں۔ جس وقت ہمارے درمیان گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں، ان سے جانیں گے کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں آج۔ جی سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ دیکھیں کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ایک بہترین میچ ہو رہا ہے جس میں پشاور زلمی اور لاہور کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آج بہترین کھیل کا مظاہرہ کرے گی وہی میچ جیتے گی۔ فی الحال تو 1 سائیڈ میچ چل رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کیا اینڈ ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج آپ یہاں پر اس کراؤڈ کو دیکھیں کہ 25,000 پلس کراؤڈ اس وقت قذافی اسٹیڈیم لاہور میں موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس شہر کے، جس صوبے کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں پر عوام جاتی ہے۔ آج رات کی اس پیر بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فیملیز آئی ہوئی ہیں، دونوں ٹیموں کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کو بیک اپ کر رہی ہیں۔ ہم بھی اس چیز کے انتظار میں کہ کبھی صوبائی حکومت ہمارا خیال ہو کہ ہم پشاور میں جو ہے اس قسم کے میچز ہوسٹ کریں۔ میں ابھی بھی پی سی بی سے انشاءاللہ ملاقات کروں کہ ہمیں اپنی صوبائی حکومت سے تو کوئی امید ہے کہ 2017 سے ہمارا گراؤنڈ بند رہا ہے، ابھی تک نہیں بن چکا، لیکن ہم پی سی بی سے کہیں کہ ایسا گراؤنڈ ایک دے تاکہ اگلے سال ہم بھی پی ایس ایل میں کوئی میچ ہوسٹ کریں اور انٹرنیشنل ٹیموں کو بھی ہوسٹ کر سکیں۔ ٹی ایچ کیو اسپتال شورکوٹ میں سہولیات کا فقدان۔ اسپتال میں موجود ڈیجیٹل ایکس رے مشین کئی روز سے خراب ہونے کے باعث آنے والے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مہر منصور الحسن سیال سے۔ جی مہر، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں شورکوٹ ٹی ایچ کے ہاسپٹل میں۔ یہاں پر ڈیجیٹل ایکس رے مشین کافی دنوں سے خراب ہے، تو میرے ساتھ ایک پیشنٹ ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی بالکل جی، یہ مشین ڈیجیٹل ایکس رے والی مشین خراب ہے جی۔ 3-4 دن پہلے بھی میں ادھر ایکس رے کرانے کے لیے آیا تھا تو خراب تھی، تو آج بھی ہم نے ایکس رے کروانا ہے تو یہ مشین خراب ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ باہر سے جی 1000 روپیہ کے مہنگے داموں میں ایکس رے کیا جاتا ہے، ادھر اس کو نارمل فیس ہے اسپتال کی۔ تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کر اس کا جلد نوٹس لیا جائے اور یہ مشین جلد ٹھیک کروایا جائے۔ شکریہ۔ جی جیسا کہ بالکل آپ نے ایک شہری کی بات سنی، وہ کہتے ہیں جی بازار میں تقریباً 1000 روپے لے رہے ہیں، لیکن ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں 250 اس کی فیس ہے، لہٰذا گورنمنٹ سے گزارش ہے مشین کو جلد از جلد ٹھیک کروایا جائے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف اسلام والی میں ہڑتال کو 4 دن گزر گئے۔ اسپتال کی او پی ڈی بند، آنے ہونے والے مریض ذلیل خوار ہونے لگے۔ اسلام والی سے محمد حنیف کلیار رپورٹ کریں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف تحصیل ہیڈ کوارٹر اسلام والی میں ہڑتال جو ہے وہ 4تھے روز میں داخل ہو چکی ہے، اور اسپتال کی او پی ڈی بھی بند ہے۔ ڈاکٹر حضرات اور باقی تمام عملہ اپنے اپنے کمروں میں آرام فرما رہے ہیں، اور اسپتال میں آنے والے مریض جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج معالجہ کرانے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ سرکاری اسپتال کا عملہ اپنی اپنی حاضری لگا کر سکون فرما رہا ہے۔ سرگودا میں شارٹ سرکٹ سے دکان میں آگ لگ گئی، 8 لاکھ روپے کا سامان جل کر خاکستر۔ بلاک 13 میں پرنٹنگ کی دکان میں شارٹ سرکٹ ہوا۔ آگ لگنے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی 3 فائر وہیکلز اور ایمبولینس موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پا لیا۔ ڈونگا بونگا میں محکمہ جنگلات کے افسر کی بدعنوانیاں اور بے ضابطگیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ بلاک آفیسر پر لاکھوں روپے مالیت کے پودے خرد برد کرنے کا الزام سامنے آ گیا۔ مزید جانتے ہیں وقاص حفیظ کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ جنگلات ڈونگا بونگا میں ایک طرف لکڑی چوروں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے تو دوسری جانب خود محکمے کے بلاک افسر سمیع الرحمان پر سنگین الزامات سامنے آ گئے ہیں۔ سمیع الرحمان نے لاکھوں روپے مالیت کے پودے خرد برد کیے اور سرکاری اراضی پر غیر قانونی طور پر چارے کی کاشت کروا رکھی ہے، جس کی مالیت بھی لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ عوامی حلقوں نے معاملے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ حکام سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
ताकि महकमा जंगलात में जारी बदनवानी का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ वकास हफीज, NTN न्यूज़, डूंगा बुंगा। जिला इंतजामिया ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम सैलाब में फंसे लोगों को निकालने के लिए फर्जी मशकों का एहतमाम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, लाइफ स्टॉक समेत तमाम जिला इदारों के अफसरान और रज़ाकारों ने शिरकत की। मियां मोहम्मद अजमल शहजाद की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने जिली अफसरान और मीडिया नुमाइंदागान के हमरा बोर्ड में बैठकर मुमकिन सैलाबी इलाकों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने फर्जी मशकों के दौरान इदारों के पेशगी इंतजाम और कारकर्दगी का भी जायजा लिया। सैलाब ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले आलात और मशीनरी के स्टाइलों का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 अकरम पनवार और दीगर अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर को मॉक एक्सरसाइज बारे ब्रीफिंग दी। फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, सिविल डिफेंस समेत दीगर इदारों ने हिस्सा लिया। जिली इदारों की जानिब से सैलाब में फंसे लोगों की जान और माल को बचाने और डूबने वालों को पानी से निकालने का अमली मुजाहरा भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के गोताखोरों के पेशा वराना डाइविंग का भी जायजा लिया। जानवरों को बीमारियों से बचाव के लिए अद्वियात और खुश्क चारे का भी जायजा लिया। मुमकिन सैलाब सूरत हाल से निपटने के लिए जिली इदारों की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का कहना था कि मशकों का मकसद तमाम इदारों की पेशी तैयारियों का जायजा और कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाना है। मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए जिला इंतजामिया ननकाना साहब के तमाम महकमे अलर्ट हैं। हंगामी सूरत हाल में लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल को इस्तेमाल में लाएंगे। रेस्क्यू 1122 के जवान अवामी खिदमत कर दिया दिन रात कोशा हैं। इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमने बहसीयत कौम कुदरती आफत और चैलेंज का मिलकर मुकाबला करना है। कैमरामैन मियां मोहम्मद असलम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। कबीरवाला तहसील कॉम्प्लेक्स में पटवारियों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। तहसीलदार राय इमरान के रजिस्ट्री ब्रांच में तैनात खवातीन पटवारी के साथ इंतकामी रवैये के खिलाफ तहसील भर के पटवारियों का एहतजाज जारी है। मजीद जानते हैं हैदर शेर की इस रिपोर्ट में। तहसील कम्प्लेक्स कबीरवाला में पटवारियों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। कबीरवाला तहसीलदार राय इमरान का रजिस्ट्रेशन ब्रांच में तैनात खवातीन पटवारियों के साथ हद तक अमेज रवैये के खिलाफ कबीरवाला तहसील के तमाम पटवारियों ने एहतजाज करते हुए तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी की। कबीरवाला के पटवारियों का कहना है कि जो खवातीन के साथ हद तक अमेज रवैया इस्तेमाल किया गया, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपना एहतजाज जारी रखेंगे। कबीरवाला के पटवारियों का कहना था कि ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ के तहसीलदार का ट्रांसफर नहीं किया जाता। कबीरवाला के पटवारियों का कहना था ये एहतजाज न के कबीरवाला और अब जिला खानेवाल की चारों तहसीलों में हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ हैदर शेर, NTN न्यूज़, कबीरवाला। टोबा टेक सिंह में आज शाय खुरनोश और सब्जियां महंगी, चीनी, दालें, फल आम आदमी की पहुंच से बाहर। रिपोर्ट कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद सिद्धू। टोबा टेक सिंह में महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दोबर कर दिया है। बाजारों में सब्जियां, दालें, चीनी और फ्रूट की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बायस आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मकामी शहरियों का कहना है कि दालें, चीनी और बाद सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि खरीदना मुश्किल हो गया, जबकि केला और प्याज जैसी चंद अशिया में कदरे कमी जरूर आई है। लेकिन रोजमर्रा की बुनियादी जरूरियात की महंगी अशिया ने मजमूई तौर पर बाजार की फजा बोझल बना दी है। महंगाई बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। गवर्नमेंट से अपील है कोई रिलीफ दे आवाम को। गरीब हम मजदूर है, हम घर जो कमाते हैं घर का खर्चा हो जाता है, कोई शय भी हमारे वो जुड़ती नहीं है। कोई महंगाई का तूफान जो है वो हम आवाम पर बरपा हुआ है। चाहे सब्जी है, चाहे फल है, चाहे फ्रूट है, हर चीज की कीमत जो है वो लोगों ने खुद बढ़ाई हुई है और हर शहर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई हुई हैं, लेकिन वो अमली तौर पर काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से आवाम परेशानी का शिकार है। मजदूर तबका जो रोजाना की बुनियाद पर कमाता है, वो बुनियादी जरूरियात की अशिया खरीदने से भी कासर दिखाई दे रहा है। शहरी और समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी रिलीफ फराहम किया जाए ताकि महंगाई का बोझ कम हो सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक सिंह। दी एजुकेटर स्कूल चीजावतनी कैंपस के ज़ेर एहतमाम बल्दिया हॉल चीजावतनी में सालाना इनामी तकसीम की पुरवकार रंगारंग तकरीब। इस तकरीब में नुमाया कारकर्दगी के हामिल तलबा तालिबात को इनामात से नवाजा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद मलिक की इस रिपोर्ट में। दी एजुकेटर स्कूल चीचावतनी कैंपस के ज़ेर एहतमाम
بلدیہ ہال چیچاوتنی میں سالانہ انعام تقسیم کی پروقار اور رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں نمایاں کارکردگی کے حامل طلباء و طالبات کو انعامات سے نوازا گیا، جبکہ بچوں نے دلچسپ ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے جنہیں شرکاء نے بے حد پسند کیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ بچوں کی رنگا رنگ پرفارمنس نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا اور حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ بلدیہ ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا، جبکہ اسٹیج پر سالانہ انعامات کی تقسیم کا دیدہ سے بینر بھی آویزاں تھا۔ پرنسپل میڈم طیبہ نے اپنے خطاب میں طلباء کی محنت کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی تقریبات بچوں کی پوشیدہ صلاحیت کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ والدین اور معزز مہمانوں نے اسکول کی تعلیمی کارکردگی اور ہم نصابی سرگرمیوں کی تعریف کی۔ جنید ملک، نمائندہ NTN نیوز، چیچاوتنی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق سیالکوٹ میں DSP ٹریفک پولیس کا تجاوزات اور بغیر ہیلمٹ اور ون وے کے خلاف ورزی پر بھاری جرمانے عائد کر دیے۔ مزید جانتے ہیں نمائندے ملک علی سے۔ جی ملک علی۔ بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق DSP سیالکوٹ مبشر جو ہے وہ بھائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ سیالکوٹ کی تمام سڑکوں پر جو کہ نجائز تجاوزات تھی اور کروچمنٹ کو جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے۔ ایک علیحدہ سے ٹیم تشکیل دی گئی ہے کہ وہ دکانیں جو ہے وہ چیک کی جا رہی ہیں جن کے خلاف FIRs اور بھاری جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ اس وقت DSP ٹریفک جو ہے موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ سر آج نے ابھی تک کتنی FIRs دی؟ جی علی، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کا جو میڈیا ہے اس کی وساطت سے جو ہمارا میسیج ہے وہ تمام اہل سیالکوٹ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے جو ہے نا وہ مثبت اثرات جو ہے نا وہ ہمیں ملتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم CM صاحبہ پنجاب کے ویژن کے مطابق انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ یہ انکروچمنٹ ہے، یہ پورے پنجاب میں جاری ہے اس وقت۔ تو بالخصوص جو ہے وہ ہم نے سیالکوٹ میں جو کارروائی کی ہے تقریباً 1000 پلس جو ہے وہ ہم FIRs دے چکے ہیں، اور ہماری SOP جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ تمام تاجر حضرات جو ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم نے جو ہے وہ طے کی ہوئی ہے کہ جو بھی سامان ہوگا جو دکاندار کا وہ شٹر کے اندر ہوگا، اور اس سے باہر اگر وہ تھڑے پہ رکھتا ہے سامان یا روڈ پہ رکھتا ہے تو ہم اس کے خلاف FIR جو ہے وہ لانچ کرائیں گے۔ اچھا سر، میں یہ بتایا کہ کتنے دکانداروں کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے؟ جی بالکل، یہ جرمانے جو ہے جب وہ کورٹ پہ جاتے ہیں FIR کا جو پروسیس ہوتا ہے تو ادھر سے جو ہم نے DSP ٹریفک کی بات سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے 1000 سے زائد FIRs دی ہیں اور جو بھی کوئی قانون کی وائلیشن کرتا ہوا نظر آئے گا اس کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جائے گی، اور جو کہ 1000 سے زائد FIRs دی گئی ہیں اور بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ جی، الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق معذور افراد کے حقوق کے بارے میں آگاہی کے لیے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفس تونسر شریف میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا۔ سیمینار میں معذور افراد کو الیکشن ڈے کے حوالے سے دی جانے والی سہولیات کے بارے میں آگاہی دی۔ مزید جانتے ہیں سہیل شہزاد کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، الیکشن ڈے کے موقع پر معذور افراد کے حقوق پر آگاہی کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے معذور افراد کے انتخابی حقوق سے متعلق ایک اہم آگاہی پروگرام ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر آفس تونسا میں منعقد ہوا۔ پروگرام کی صدارت ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تونسا اشفاق احمد خان نے کی، جبکہ الیکشن آفیسر نادر علی خان اور دیگر بھی اس پروگرام میں شریک تھے۔ پروگرام کا مقصد معذور افراد کو انتخابی عمل میں بااختیار بنانا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے فراہم کردہ سہولیات سے آگاہی فراہم کرنا تھا۔ مختلف فلاحی اداروں، خصوصی افراد اور سماجی نمائندوں نے اس سیمینار میں بھرپور انداز میں شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر تونسا اشفاق احمد خان نے ووٹر رجسٹریشن، کمیشن شناختی کارڈ کے حصول، وارڈ سطح پر اندراج اور پولنگ ڈے پر سہولیات سے متعلق شرکاء کو تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ شرکاء نے بھی مطالبہ کیا کہ پولنگ سٹیشنز پر معذور افراد کے لیے مخصوص نشستیں، ریمپ، سفری سہولیات اور ترجیح ووٹنگ کا انتظام کیا جائے۔ اشفاق احمد خان نے تمام نکات کو سنجیدگی سے سنا اور یقین دہانی کرائی کہ الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات میں معذور شہریوں کے لیے سہولیات کو یقینی بنائے گا۔ سہیل شہزاد، NTN نیوز، تونسا شریف۔ RPO ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان اور کمشنر اشفاق احمد چودھری کی زیر صدارت کمشنر آفس ڈیرہ غازی خان میں ڈویژنل انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اضلاع کے ڈسٹرکٹ پولیس افسران، ڈپٹی کمشنر، سیکیورٹی ایجنسیز کے ڈویژنل سربراہان شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر پر سخت سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور بارڈر ایریا کے تھانہ جات، پولیس چوکیات اور دیگر اہم سرکاری دفاتر کی سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اجلاس میں راجن پور کچا میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف جاری
जारी ऑपरेशन। पुलिस को हासिल होने वाली कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के दौरान कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने डीजी खान डिविजनल से गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के बाइज्जत वापसी वतन के यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर का तहसील समड़ियाल का दौरा, बैनर्स और स्ट्रीमर्स फौरी हटाने की हिदायत की। ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाया जाए और नए पौधे लगाए जाएं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान की इस रिपोर्ट में। जी डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सईद हसन रजा ने तहसील समड़ियाल का तफसीली दौरा किया, जहां इन्होंने ग्रीन बैनर्स को खूबसूरत बनाने, सड़कों के तरफ से गैर जरूरी बैनर्स और स्ट्रीमर्स को हटाने और जायजा के खात्मे के लिए ऑपरेशन को जी तेज करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कलाम फातिमा भी बंदयाल और सीओ जिला कौंसिल फैसल शहदाद भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना करते हुए सफाई की सूरत-ए-हाल और जायजा के खात्मे से मुतल्लक इक़दाम जायजा लिया। इन्होंने ऑक्सीजन हाईवेज को भी हिदायत की कि सड़कों के शोल्डर्स को पुख्ता किया जाए ताकि इनकी अमर में इजाफा और ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाई जा सके। इन्होंने वाजिया तमीराती मेयार पर किसी किस्म का समझौता काबिल कबूल नहीं होगा। बाद अजान डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा ने तहसील हेडक्वार्टर समड़ियाल का अचानक दौरा किया और मरीजों की इयादत की और इनसे तिब्बी सहूलियात मुफ्त अद्वियात की फराहमी की बाबत इंतजार किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान, NTN न्यूज़ समड़ियाल। शोरकोट में चौकी ग्राउंड के करीब नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर बच्चे को अगवा कर लिया। रऊफ नामी शख्स का बेटा 7 साला अशर ट्यूशन के लिए जा रहा था। अचानक गली में मोटरसाइकिल पर 2 नामालूम अफराद ने बच्चे को उठाया और फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। DPO काड़ा राशिद हिदायत ने जिला भर में खुली कचहरियों के इनेकाद का सिलसिला शुरू कर रखा है। थाना हुजरा के इलाके किला सोंधना संघ में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें इलाका भर से कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। DPO काड़ा राशिद हिदायत ने साइलिन के मसाइल को सुना और मौके पर उनके हल के अहकाम जारी किए। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे तनवीर अहमद शाहीन की रिपोर्ट में। DPO काड़ा राशिद हिदायत ने जिला भर में खुली कचहरियों के इनेकाद का सिलसिला शुरू कर रखा है। थाना हुजरा शाह मुकीम के इलाका किला सोंदा सिंह में भी आज खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर खुली कचहरी में आने वाले साइलिन के मसाइल को DPO काड़ा राशिद हिदायत ने सुना और मौके पर इनके हल के अहकामात जारी किए। DPO काड़ा राशिद हिदायत ने इंस्पेक्टर रेहाना कौसर इंचार्ज कंप्लेंट सेल उघाड़ा को शहरियों की दरखास्तों के हवाले से फॉलो अप लेने की हदायत जारी की ताकि साइलिन की दादरसी मुमकिन बनाई जा सके। खुली कचहरी से खिताब करते हुए DPO काड़ा राशिद हिदायत ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक ज़िला भर में डिलीवरी सर्विस दी जा रही है। इंसाफ की फराहमी, साइलिन की दादरसी इनकी दहलीज पर मुमकिन बनाई जा रही है। अमन व अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह है। मकरू धंधे में मुलव्वस जराइम पेशा अनासर को ज़िला उकाड़ा में जाए पनाह नहीं मिलेगी। पुलिस आवाम के जानो माल की मुहाफ़ज़त है, इसमें कोई कोताही काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव और सेक्टर कमांडर सतलज की ज़ेर सदारत अहम इजलास, नादहिंदगान से रिकवरी और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। ईस्टर्न सर्कल की सबसे डिवीजन सलामतपुरा के SDO राउज तारिक ने नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया। दर्जनों डेड डिफॉल्टर से रिकवरी की और डायरेक्ट कुंडा लगाकर बिजली चोरी करने वालों को रंगे हाथों पकड़ा। मजीद देखते हैं नुमाइंदा लाहौर नवाज भट्टी की रिपोर्ट। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट और सेक्टर कमांडर सतलुज रेंजर्स ब्रिगेडियर सैयद नैयर अब्बास की ज़ेर सदारत DSU के इजलास में बिजली चोरी और नादहिंदगान से रिकवरी के अमल को डेस्को स्पोर्ट्स यूनिट्स के साथ मिलकर लेस्को अफसरान को कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत जारी कर दी। ईस्टर्न सर्कल के सलामतपुरा सब डिवीजन के SDO राव तारक ने अपनी टीम के हमरा डेस्को स्पोर्ट्स यूनिट्स के साथ मिलकर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जो कि लेस्को की मेन सप्लाई से कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली तारें भी अपने कब्जा में लेकर कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए और FIR का इंदराज करवाकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। साथ ही नादहिंदगान और डेड डिफाल्टर से रिकवरियां भी की गईं और रनिंग डिफाल्टर के कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर्स और ट्रांसफार्मर भी उतार लिए गए। कैमरामैन कामिल शहजाद के साथ नवाज भट्टी, NTN न्यूज़ लाहौर। असिस्टेंट कमिश्नर सलाम वाली तारिक महमूद ने
नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। सलाम वाली के इलाका शाह नगटर में सरकारी जमीन पर अरसा दराज से बनाए गए खोखे मिसमार करा दिए। सलाम वाली से मोहम्मद हनीफ कलियार की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली तारिक महमूद ने सिलावाली के इलाका शाह निगलर में नजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए नजायज काबदीन जिन्होंने अरसा दराज से सरकारी ज़मीन पर खोखे बनाकर कब्जा जमा रखा था उनको मसमार कर दिया है और दुकानों के आगे बने थड़े जो है उनको भी उखाड़ दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिलावाली तारिक महमूद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सरकारी ज़मीनों पर काबिज माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान DSP सिलावाली मोहम्मद शाहिद, SHO थाना शाहनिगरा राना आसिम शहजाद और पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौका पर मौजूद थी। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कलियार, NTN न्यूज़ सिलावाली। कसूर के इलाके मुस्तफ़ा अनलियानी में तजावुजात के खिलाफ इम्तियाजी ऑपरेशन पर ताजिर फट पड़े। कहा मखसूस इलाकों को टारगेट करके ऑपरेशन किया जा रहा है। इंतजामिया मनपसंद लोगों को खुली छुट्टी देकर गरीब ताजरों को मुआशी बदहाली में धकेल रही है। इस हवाले से देखते हैं हाफिज नोमान चौधरी की रिपोर्ट। मुस्तफाबाद ललियानी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन ने ताजरों में बेचैनी पैदा कर दी। ताजरों का कहना है कि हम खुद तजावजात के खिलाफ पंजाब हुकूमत की पॉलिसी के हक में हैं, मगर चंद मखसूस इलाकों को टारगेट करना ज्यादती है। वक्त और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना बल्दिया के तजावज़ का ऑपरेशन उसके खिलाफ दौराना चाहता हूँ। ये सिर्फ 5% पे ऑपरेशन हो रहा है, बार बार उन्हीं इलाकों में हो रहा है। मेन फिरोजपुर रोड के पूरे इलाके को मुकम्मल तौर पर तजावजात से पाक करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है, मगर मेरिट पॉलिसी भी लाजमी है, वरना इसकी वजह से हुकूमत के खिलाफ नफरत में इजाफा होगा। मेरी अपील ये है बाजी मर्जियाँ वज़ीर आला से, DC से, AC से कि वो इम्तियाजी सलूक ना करें, किसी से गैर जानबदाराना ऑपरेशन करें, जो सभी के साथ एक जैसा सलूक करें। शहरियों का मुतालबा है कि बिला इम्तियाज ऑपरेशन वक्त की जरूरत है ताकि शहरियों को रस्तों से गुजरने में आसानी हो सके। कैमरा टीम के साथ हाफिज नोमान चौधरी, NTN न्यूज़, कसूर। सराय मुगल के नवाही इलाका बहड़ोल कला में किसान की खड़ी फसल गंदुम को आग लग गई। किसान की लाखों रुपए मालियत की खड़ी गंदुम जलकर खाकसर। अहले इलाका अपनी मदद के तहत आग बुझाने की कोशिश करते रहे। रेस्क्यू 1112 इत्तला के बावजूद मौके पर ना पहुंच सकी। आग बिजली की लटकती 11,000 kV तारों के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पुलिस के मुताबिक किसान की 2.5 एकड़ रकबे पर मुहित फसल जलकर राख हो गई। RPO फैसलाबाद ज़ीशान असगर की ज़ेर सदारत मदीना डिवीजन और सर्कल तांदलियावाला के पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में क्राइम कंट्रोल, संगीन मुकदमात की यकसुई और पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। रिपोर्ट करेंगे फैसलाबाद से नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली हसन साहब। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ज़ीशान असगर ने फैसलाबाद के मदीना डिवीजन और सर्कल तांदलियावाला के अफसरान के साथ अहम क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में SP मदीना डिवीजन साद अरशद, SP तांदलियावाला मोहम्मद ताहिर समेत सर्कल अफसरान, SHO, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शरीक हुए। RPO ने जेर तफ्तीश संगीन मुकदमात जैसे कत्ल, डकैती, कत्ल, अगवा, रेप और दीगर वारदातों को जल्द अज जल्द यकसू करने की हिदायत दी। उन्होंने पुलिस अफसरान को मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी और मुकदमात की मेरिट पर यकसुई बनाने का हुक्म दिया। RPO ने कहा कि शहरी और देही इलाकों में जराइम पर काबू पाने के लिए पेट्रोलिंग सिस्टम को मजीद मुअस्सिर बनाया जाए। पब्लिक कंप्लेंट्स 1787 और 15 कॉल्स पर फौरी रिस्पांस दिया जाए, जबकि संगीन जराइम की सूरत में सीनियर अफसरान जाए वकुआ पर मौजूदगी यकीनी बनाएं। मंशियात फरोशों, मोटरसाइकिल चोरों, जुए के अड्डों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया। RPO फैसलाबाद का कहना था कि पुलिस का अव्वलीन फरीजा कानून की अमलदारी और जराइम पेशा नासिर का किला कुमा करना है। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़ फैसलाबाद। सरगोदा में जुल्म बरबरीत की इंतहा, जागीरदारों ने शहरी को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। मोहम्मद वजाहत वल सोले मोहम्मद को नामालूम मकाम पर ले जाकर बेईमाना तशद्दुद किया, भवे मूछ काट दी, तशद्दुद की वीडियो बनाते रहे, बेहोशी की हालत में घर के करीब फेंक कर फरार हो गए। वाक़े पर अहले इलाके में शदीद खौफ व हरास। खानेवाल में थाना सिटी की हुदूद के रिहायशी गुलाम हुसैन अपनी बेवा बहन के हमरा अपने बड़े भाइयों की ज्यादतियों से तंग आकर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंच गया। मज़ीद तफसील जान लेते हैं अदनान रसूल से, जो इस वक्त मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी अदनान रसूल।
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में। खानेवाल के रहायशी मर्दों ख़वातीन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंचे हैं, जहां पर उनकी विरासती ज़मीन पर उन्हीं के भाई मुबैना तौर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंतहाई परेशान है। तो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मुतासरा शख्स, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। क्या कहेंगे आप? सर, हमारी दुकान कमर्शियल है, उसका हम किराया लेते रहे हैं, भाइयों का अपना हिस्सा है, वो उस पर कारोबार कर रहे हैं। अब वो हमारी जो मेरी दोनों बहनों का और मेरा है हिस्सा है, उस पर वो कब्जा करने के मुतअद्दिद बार कोशिश कर चुके हैं जो, और मुझे तशद्दुद करते हैं, कत्ल-ए-आम की धमकियां देते हैं, मुतअद्दिद दरखास्तें दे चुके, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी आरपीओ साहब से, डीपीओ साहब से अपील है कि हमें हमारा विरासती जो हिस्सा है हमें वो दिलवाया जाए, जो हमारा हक है। वो हमारे हिस्से के ऊपर कब्जा करने की शरपसंद लोगों के साथ मुतअद्दिद बार कोशिश कर चुके हैं। ये बताइएगा, जो आपकी विरासत है उसके हिस्से की तकसीम हो चुकी है? वो तकसीम नहीं हुई उसकी, लेकिन वो जो हमारे कब्जे में था, वो हमारे वाले साहब के फोत होने के बाद हम उसका किराया लेते रहे हैं। वो अपने हिस्से पे काबज है, हम अपने हिस्से पे काबज थे। अब वो हमने जो किराए पे ख़त्म हुई है, दोबारा जब हमने किराए पे देना चाह रहे हैं, वो हमें देने ही नहीं दे रहे। अपने ताले लगाने की कोशिश उन्होंने की और परसों उन्होंने उस पर ताले तोड़ के कब्जा करने की कोशिश की, 1-5 भी की है, मेरी कोई दाद रसी नहीं हुई। इस दफ़ा तो मुझे जान की धमकियाँ भी दी हैं। बेटे ने पिस्टल उसके निकाली, मोहम्मद शरीफ के और मोहम्मद सदीक, और उसकी औलाद से मुझे सख्त जान का खतरा है। मुझे सख्त जान का खतरा है। आरपीओ खानेवाल, आरपीओ मुल्तान, डीपीओ खानेवाल से मुतालबा कर रहे हैं कि जो हमारी विरासती दुकानें हैं वो हमें दिलवाई जाए। मजीद उनका कहना था कि जो हमारे वालिद साहब के दौर में जो हमारे नाम थी, वो जो जिसमें हम विरासत में हिस्सेदार हैं, तो हम अपने पे काबिज थे, लेकिन हमने किराए पे दी हुई थी। तो हमने जब दोबारा खाली करवा किराए पे देने की कोशिश की, तो हमारे जो भाई हैं मुबैना तौर पर वो काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे हैं डीपीओ खानेवाल से। जी। वर्ल्ड मलेरिया डे के मौके पर मदीना टीचिंग यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मलेरिया और डेंगू जैसे मूसी अमराज से बचाव के लिए आगाही सेमिनार इनेकाद किया। सेमिनार में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद से देखते हैं अली हसन साबरी की रिपोर्ट। फैसलाबाद में वर्ल्ड मलेरिया डे के मौका पर सेहत आमा के मसाइल को उजागर करने और अवामी शऊर बेदार करने के लिए मदीना टीचिंग यूनिवर्सिटी में खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजमत अब्बास खिची ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना नागुज़ीर हो चुका। माहिरीन सेहत ने शुरका को बीमारी की अलामात, फैलाव की वजूहात और हिफाजती इकदामात से मुतल्लिक तफसील से आगाह किया। आगाही पंफलेट्स तकसीम किए गए और सवाल और जवाब का सेशन भी रखा गया, जिसमें शुरका ने भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।